Good afternoon, my dear students. I hope you all are fine and you all are enjoying this grammar class on this digital platform. So, you have been studying determiners. Already we have finished part 1 and part 2 of this lesson, determiner. Today I am going to start part 3 of this topic, determiners. Okay. So, I welcome you once again on this digital platform of learning. So, it is time for us to read about the classification of predeterminers. So, in how many categories predeterminers are classified? Okay. As I have told you before that, we will be studying about the classification of determiners also, but it is essential for you to know about the classification of predeterminers first. Okay. After this, I will be teaching you the types of determiners also. Okay. So, move to the classification of predeterminers. Means what are the types of predeterminers? Okay. Predeterminers can be categorized into 4 types. Okay. Multipliers, fractions, intensifiers, others. So, these predeterminers can be classified into 4 types. Okay. So, I will be discussing each of the type right now. Okay. So, please you keep your mind on learning. Okay. And I tell you one thing, try to understand what I am teaching you. Okay. If it is not a thing of learning by heart, grammar is not a thing which is to be learned by heart. Okay. Unlike other subjects. Okay. So, grammar is to be understood by you properly. You must understand it. Okay. So, try to understand it. So, first one is multipliers. So, multipliers are words that modify the noun by multiplying the quantity. Multipliers क्या है? ये वो शब्द है, वो nouns है, वो words है, sorry, जो नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन के मीनिंग को और क्लियर करता है. ओके. नाउन की विशेषता को बताता है, नाउन के मीनिंग को क्लियर करता है. ठीक है. ओके. So, it modifies the noun by multiplying the quantity. Words like twice, let me erase it please. Okay. So, words like twice, 5 times, 10 times, 3 times, once, double, triple, quadruple, 4 times, etc. are multipliers. So, multipliers क्या होता है? जिसमें मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है, बढ़ने का. जैसे हम लिखते हैं 2 into 4, ये क्या हुआ? 8. बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ते क्रम में जा रहा है. ठीक है. तो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट हम लोग देखते हैं मल्टीप्लायर्स में. ठीक है. जैसे देखो कोई भी क्वांटिटी है, हम लोग बोलते हैं he ate twice the rice I had eaten. He ate twice the rice I had eaten. तो जो ट्वाइस हो गया वो क्या होगा? मल्टीप्लायर. मेरे से दुगुना ज्यादा खाया, दुगुना, 3 गुना, हाँ 4 गुना, जो क्वाड्रुपल बोलते हैं, हाँ
3 टाइम्स मतलब 3 बार, वंस मीन्स 1 बार, डबल मीन्स दुगुना, ट्रिपल मीन्स 3 गुना, क्वाड्रपल मीन्स 4 गुना। तो किसी खाने वाले की कोई लिमिट नहीं है, हम जितना खाते हैं उसका 4 गुना भी खा सकता है, ठीक है। तो वैसे शब्द जो हो गया 4 टाइम्स, क्वाड्रपल सब यूज हो गया, वो सब इंडिकेट क्या करता है, मल्टीप्लायर्स। वो सब क्या चीज के बारे में बताता है, मल्टीप्लायर्स के बारे में। ओके, क्लियर? नाउ वी सी द एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लायर्स। ओके, पे अटेंशन। He drank twice as much as I did. He drank as much as I did. अगर मैं बोलता हूं इसको ट्वाइस को मैं थोड़ा देर के लिए ढक देता हूं, हाँ, इसको हटा देता हूं और मैं कहता हूं कि he drank as much as I did, मतलब वो उतना ही पानी पिया, हाँ, जितना मैंने पिया, मतलब बराबर हो गया, उतना ही पिया जितना मैंने पिया, ठीक है। लेकिन जहां मैं बोलता हूं he drank twice as much as I did, कि मैंने जितने पानी पिए, हाँ, उसका दुगना वो पिया, तो क्या हो गया, ट्वाइस क्या हो गया, ट्वाइस इज मल्टीप्लायर हियर, इट्स अ what is it is a predeterminer, it is a predeterminer, but it comes into मल्टीप्लायर्स कैटेगरी, मल्टीप्लायर्स के कैटेगरी में आता है। इज इट क्लियर? नाउ यू सी, आई सी अ डॉक्टर 4 टाइम्स अ ईयर, 4 टाइम्स अ ईयर। अगर मैं कहता हूं आई सी ए डॉक्टर इन ए ईयर, मैं डॉक्टर से मिलने साल में 1 बार जाता हूं, इन ए ईयर बोलने से क्या होगा, 1 बार जाता हूं साल में, ठीक है। लेकिन यहां है 4 टाइम्स, तो ईयर क्या हो गया, ईयर बिकम्स अ नाउन ओवर हियर, इट इज अ नाउन ओवर हियर। ए इज अ डिटर्मिनर, ए क्या है, डिटर्मिनर है। और कितने बार, 4 टाइम्स। इसको और क्लियर कर रहा है, मीनिंग ऑफ इस सेंटेंस का मीनिंग, और खास करके नाउन के बारे में जो बता रहा है उसको और मॉडिफाई कर रहा है। सो व्हाट इज दिस 4 टाइम्स, प्री डिटर्मिनर। एंड व्हाट काइंड ऑफ प्री डिटर्मिनर इट इज, इट इज ए प्री डिटर्मिनर ऑफ मल्टीप्लायर्स कैटेगरी। ओके, इट इज ए प्री डिटर्मिनर ऑफ मल्टीप्लायर्स कैटेगरी। मल्टीप्लायर्स जो प्री डिटर्मिनर का एक टाइप है। ओके, क्लियर? Now you see, I called you 2 times yesterday. Yesterday is a noun. So yesterday is a noun over here. Sometimes yesterday is used as an adverb also. It depends upon the sentence. Okay. So yesterday is a noun over here. I called you yesterday. अगर मैं कहता हूं कि मैंने कल तुम बुलाया था या कॉल किया था फोन पर, इसका मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है, उसमें कुछ बता रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, ये तो नहीं बता रहा है, सिंपली पता चल रहा है। लेकिन यहां इसको और स्ट्रेस देने के लिए, इसको और क्लियर करने के लिए यहां 2 टाइम्स आ गया, मल्टीप्लाइंग इफेक्ट। ओके, आई कॉल्ड यू 2 टाइम्स यस्टरडे, तो 2 टाइम्स क्या हो गया, ये प्री डिटर्मिनर हो गया, एंड दिस इज अ प्री डिटर्मिनर ऑफ मल्टीप्लायर्स कैटेगरी। क्लियर? नाउ कम टू फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ प्री डिटर्मिनर, सेकंड कैटेगरी है, सेकंड टाइप। ओके, फ्रैक्शंस आर यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रैक्शंस ऑफ सम अमाउंट। जब हम किसी अमाउंट के फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तब हम फ्रैक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी अमाउंट, कोई भी अमाउंट ले लो, 1 रोटी है, 1 रोटी का 1/4 खाना है, तो उस अमाउंट एक रोटी का 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 ऑफ 1,
मानो एक ब्रेड है मेरे पास, ठीक है, ये क्या है, ब्रेड है। ब्रेड तुम लोग खाते हो, पाव रोटी खाते हो, ये 4 भाग मैंने कर दिया, 4 भाग कर दिया ब्रेड का, तो ये क्या हो गया, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 हो गया ना, एक एक भाग 1/4 हो गया ना, ठीक है। तो ये 1/4 जो हो गया ऑफ अ ब्रेड, 1/4 जो हो गया, इसको मैं इसमें लिखना चाहिए 1/4, 1/4 मीन्स 1/4, ये जो हो गया 1/4 जो हो गया, ये प्री डिटर्मिनर हो गया। और कौन सा प्री डिटर्मिनर हुआ, फ्रैक्शन कैटेगरी का, फ्रैक्शन कैटेगरी का प्री डिटर्मिनर हुआ। क्लियर, फ्रैक्शंस इसको मैं एक्सप्लेन कर दिया, आगे चलकर और एक्सप्लेनेशन है। फ्रैक्शंस इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी ऑफ द नाउन, ये मल्टीप्लाइंग इफेक्ट नहीं होता है, ये मल्टीप्लाई इफेक्ट नहीं होता है फ्रैक्शंस में, इसमें डिवीजन इफेक्ट होता है। कोई चीज को इसको डिवाइड किया तब ना 1/4 आया, इसको डिवाइड किया तब ना 1/4 आया, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि डिवीजन इफेक्ट होता है। हाँ भाई, वी instead of multiplying the quantity of the noun, we divide it, okay, we divide it, like words like half, 1/3, रोटी का आधा, रोटी का आधा क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। 1/3, half, 1/3, 2/3, 3/4 etc. आर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन तुम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हो, ठीक है। तो वही चीज है, डिवाइड करके फ्रैक्शन आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन आता है, नहीं ना, नहीं, तो मल्टीप्लाई या जोड़ने से फ्रैक्शन नहीं आता है, सो डिवाइड करना पड़ता है। किसी अमाउंट को कोई नंबर से डिवाइड करना होगा या कितने भाग में डिवाइड करना है, तो हम लोग डिवाइड करके फ्रैक्शन को निकालते हैं। ओके, क्लियर। You see here, for example, 1/3 a cup of sugar is added in this recipe. एक रेसिपी है, रेसिपी यू नो, घर पे प्रिपेयर करते होगे तुम लोग, खास करके गर्ल्स, एक रेसिपी यूट्यूब पर आते रहता है, ठीक है। 1/3 a cup of sugar is added to this recipe. एक नया रेसिपी आया है, समझ लो मार्केट में यूट्यूब पर, जो हलवा बनाने, मानो 1 कप, हाँ 250 ग्राम हलवा बनाने में, हाँ 1 कप चीनी लग जाता होगा। अब क्या है, 1/3 कप में ही हो जाएगा। अब ऐसा रेसिपी आएगा कि 1 कप की जगह 1/3 में ही हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है 1/3 कप ऑफ शुगर इज एडेड इन दिस रेसिपी। तो ये नया रेसिपी जो आया है, इसमें 1/3, हाँ 1 कप का 3 भाग में 1 भाग काफी है, 1/3, 3 भाग में 1/3 ही काफी है शुगर, उसी में मीठा भी हो जाएगा और स्वादिष्ट भी हो जाएगा। हाँ, ऐसा रेसिपी आया है। तो शुगर क्या है बेटा, शुगर इज अ नाउन ओवर हियर। हाँ, कप ऑफ शुगर, ए क्या है, ए डिटर्मिनर है, ठीक है। 1/3 क्या है, ये प्री डिटर्मिनर है। और कौन सा प्री डिटर्मिनर है, फ्रैक्शंस। क्लियर, सबको क्लियर हो गया। नाउ सेकेंड वन, आई स्पेंट हाफ माई पॉकेट मनी इन शॉपिंग। हाफ माई पॉकेट मनी, आई स्पेंट हाफ, मैंने हाफ का जिक्र किया था, ठीक है। तो हाफ जो है ये हो गया प्री डिटर्मिनर रिलेटेड टू फ्रैक्शंस। क्लियर, बाकी सब तुम लोग समझ में आ जा रहा। पॉकेट क्या है, पॉकेट मनी क्या है, समझ में आ रहा है, नाउन है, उसके पहले माई आ गया, क्या है पता है, डिटर्मिनर है। ओके, नाउ यू सी, शी यूज्ड 2/4 ऑफ द ग्रोसरीज। जितने उसके पास ग्रोसरीज थे, किराने के सामान थे, माने चावल मान लो, चावल उसके पास इतना है, 2 किलो, 2 किलो चावल है किसी के पास, तो 2/4, 4 भाग में 2 भाग ही वो यूज की, ठीक है। मतलब मानो 1 किलो है, 1 किलो है, 1 किलो का 2/4 ऑफ 1000 ग्राम,
कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 500 ग्राम। हाँ ठीक है, खैर ये मैथमेटिक्स हमको नहीं पढ़ाना है, हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश ग्रामर, सो इसको मिटा देना सही रहेगा। ओके, तो 2/4 ऑफ 1000 माने 1000 ग्राम मानो राइस है। तो यहाँ ग्रोसरीज का मतलब राइस आइटम, कुछ दाल वगैरह इसको बोलते हैं ग्रोसरीज, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 4 भाग में 2 भाग यूज की, तो कितना हो गया? आधा हो गया ना। तो आधा 2/4 का मतलब हाफ यूज की, ग्रोसरी जो उसके पास था। तो 2/4 क्या हो गया? 2/4 क्या हो गया? दिस इज प्री डिटर्मिनर, fractional predeterminers. Okay, now I found a recipe that only calls for 1/4 the sugar. वही ऊपर वाला एग्जाम्पल दिया था, एक रेसिपी मुझे मिला है जहां 1 कप लगता था, अब 1/4 कप में हो जा रहा है, 1/4 कप में हो जा रहा है। 1 कप में 200 ग्राम आता होगा, हाँ 200 ग्राम आता होगा, 200 ग्राम ही आता है, जनरल वही होता है। 200 ग्राम की जगह मेरा कितना में हो जाएगा? 50 ग्राम में हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 जो हो गया, दिस इज प्रीडिटर्मिनर ऑफ फ्रैक्शन कैटेगरी। ओके, नाउ यू सी हियर, इसको मिटा देना होगा। Now you see next one. I ate 1/3 of the cookies. 1/3. 1/3. What is this? This is predeterminer. Okay, of the fraction category. Now move on to the next slide. Next is intensifiers. फ्रैक्शन के बाद जो थर्ड वाला जो प्री डिटर्मिनर है वो है इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर्स कैसे बना है? ये इंटेंसिटी से बना है, मतलब स्ट्रेंथ, गिविंग पावर टू द नाउन को और पावरफुल बनाना, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको और पावरफुल बनाते हैं, उसको और स्ट्रेंथन करते हैं। ओके, सो इंटेंसिफायर्स आर द प्री डिटर्मिनर्स दैट आर यूज्ड टू ऐड सर्टेन इमोशनल मीनिंग to a noun phrase and a determiner before it. तो ये क्या है? इंटेंसिफायर्स, ये प्री डिटर्मिनर्स है जो कि कुछ सर्टेन इमोशनल मीनिंग को ऐड करता है एक नाउन फ्रेज या एक नाउन में, ठीक है। और जो भी डिटर्मिनर यूज हो रहा है उसके पहले इमोशनल मीनिंग अटैच करता है, ठीक है। कोई भी डिटर्मिनर नाउन से पहले हम यूज कर रहे हैं ना, उसके मीनिंग को और क्लियर करता है, ठीक है, और उसको अधिक शक्तिशाली बनाता है, ठीक है। वो जो डिटर्मिनर होता है, प्री डिटर्मिनर, उसको बोलते हैं इंटेंसिफायर्स। ओके, नाउ यू सी इंटेंसिफायर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, पावर और इंटेंसिटी ऑफ द नाउन। इंटेंसिफायर्स के बारे में पहले बता चुका हूं। दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ और पावर ऑफ द नाउन और इंटेंसिटी ऑफ द नाउन। उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, उसको स्ट्रेंथन करता है नाउन को, ठीक है। कौन स्ट्रेंथन करता है? इंटेंसिफायर्स। ये दिस इज अ टाइप ऑफ प्री डिटर्मिनर, दिस इज द प्री डिटर्मिनर ऑफ द थर्ड कैटेगरी। ओके, वर्ड्स लाइक सच, what, comma must be given. Words like such, what, rather, quite are intensifiers. So ये सब words होते हैं, such, what, rather and quite are basically intensifiers. ये इंटेंसिटी को बढ़ाता है किसी भी नाउन के, किसी भी सेंटेंस में जो नाउन है उसको अधिक बल देता है, उसे शक्तिशाली बनाता है, उसके मीनिंग को और क्लैरिफाई करता है. ओके, दीज आर यूज बिफोर एन इनडेफिनेट आर्टिकल. और ये कहां यूज किए जाते हैं? ये जो इंटेंसिफायर्स होते हैं
इंडेफिनेट आर्टिकल का पहले यूज कर किया जाते हैं, बिफोर एन इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव एंड ए नाउन। तो ये इंटेंसिफायर्स कहाँ यूज किए जाते हैं? एक इंडेफिनेट आर्टिकल के पहले यूज किए जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद एडजेक्टिव और नाउन होना चाहिए, ठीक है, क्लियर? इट विल बिकम मोर क्लियर व्हेन आई विल गिव द एग्जांपल्स, ओके? You see here, see my dear students, so these intensifiers, I was talking about intensifiers, these can express disappointment, ये निराशा का भाव प्रकट कर सकता है, मतलब एक प्रकार का भाव आता है, फीलिंग आता है हमारे मन में जब वो वर्ड्स को स्पेल करते हैं, वैसा फीलिंग आता है, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है एंड अदर इमोशंस। कोई निराशा हो सकता है, आश्चर्यजनक बात हो सकता है, और दूसरा इमोशन क्या हो सकता है? खुशी हो सकता है, ठीक है, और दुख से रोना भी हो सकता है, जैसे डिसअपॉइंटमेंट मैंने बता दिया, ठीक है, ये समझ पा रहे हो ना? Words rather and quite don't have any stable positive और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक। वर्ड्स जो होता है rather and quite, इसका कोई स्टेबल पॉजिटिव मतलब स्थायी पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, कोई फीचर्स नहीं होते हैं, ठीक है, बिकॉज द इमोशन डिपेंड्स ऑन द एडजेक्टिव और डिटर्मिनर दैट स्टैंड्स बिफोर ए नाउन और ए नाउन फ्रेज, ओके, बेसिकली बिफोर ए नाउन फ्रेज, क्योंकि वो इमोशन डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द एडजेक्टिव और द डिटर्मिनर वी आर यूजिंग, ओके, दैट स्टैंड्स बिफोर ए नाउन फ्रेज। जो नाउन फ्रेज से पहले जो इमोशन आता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, उसके स्टेबल पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ए गॉर्जियस हाउस, गॉर्जियस मतलब ब्यूटीफुल, लवली, दैट इज कॉल्ड गॉर्जियस, ओके। एफबी पर हम लोग कमेंट करते हैं गॉर्जियस, एफबी पे कमेंट करते हो ना, तो ये तो बहुत अच्छा से तुम लोगों को मालूम होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉर्जियस, ओके। व्हाट ए गॉर्जियस हॉर्स, ओके, तो गॉर्जियस का मतलब सुंदर। अगर मैं बोलता हूं इट इज ए गॉर्जियस हॉर्स, जस्ट सी प्लीज, इट इज ए गॉर्जियस, इट इज अ गॉर्जियस हॉर्स, अगर मैं कहता हूं तो क्या है, यह एक सुंदर घोड़ा है, यह एक सुंदर घोड़ा है, बहुत सुंदर घोड़ा है, ये कह सकते। गॉर्जियस में बहुत सुंदर, ओके, ब्यूटीफुल, ओके। अगर उसी शब्द को, तो ये अगर मैं इट इज गॉर्जियस हाउस बोलता हूं तो गॉर्जियस क्या है, गॉर्जियस हॉर्स फ्रेज है, गॉर्जियस हॉर्स फ्रेज है, क्योंकि इसमें गॉर्जियस क्या है, एडजेक्टिव है, ओके। और उससे पहले क्या है, डिटर्मिनर, उससे पहले क्या है, डिटर्मिनर। अगर मैं बोलता हूं व्हाट ए गॉर्जियस हाउस, हॉर्स, सॉरी हॉर्स, तो इसका मतलब हॉर्स या हाउस बोलो, हाउस भी गॉर्जियस हो सकता है, हॉर्स भी गॉर्जियस हो सकता है। तो कितना सुंदर घोड़ा, घोड़े को देखे अति सुंदर, हाँ, जैसे महाराणा प्रताप के घोड़ा था, जो घोड़ा था उतना सुंदर कोई घोड़ा दिख गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट ए गॉर्जियस हॉर्स, मतलब आश्चर्यजनक बात, मतलब अति सुंदर घोड़ा, इतना सुंदर घोड़ा बोलते हैं ना, इतना सुंदर घर, ओके। तो व्हाट लगा देने से इतना सुंदर हो गया, मतलब बहुत सी सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर। तो व्हाट क्या हो गया, प्री डिटर्मिनर। और ये कौन सा कैटेगरी का प्री डिटर्मिनर हुआ, इंटेंसिफायर्स, क्लियर। नाउ व्हाट ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग, नेक्स्ट वन इज व्हाट ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग, मतलब अगर मैं लिखूं इट इज ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग, मतलब नॉर्मल हो जा रहा है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल मॉर्निंग ये हो गया नाउन फ्रेज, ये नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है।
इससे पहले ए जो लगा है डिटर्मिनर हो गया। व्हाट ए ब्यूटीफुल, मैंने आश्चर्यजनक बात, चौंकने वाली बात है। तो क्या लगेगा, व्हाट लगा हुआ है। इतना सुंदर सुबह मैंने कभी नहीं देखा। तो इतना सुंदर वाली बात जो व्हाट क्या है, एक्सक्लेमेशन को रिफ्लेक्ट करता है, एक्सक्लेमेशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये हो गया प्री डिटर्मिनर, एंड दिस इज अ प्री डिटर्मिनर ऑफ इंटेंसिफायर्स कैटेगरी। ओके, नाउ यू सी व्हाट ए लवली डे। दो है इसमें, सॉरी इसमें वाई छूटा हुआ है और इसके साथ एक और सेंटेंस है, व्हाट ए लवली डे। फिर वही बात है, कितना सुंदर घर। तो ए हो गया डिटर्मिनर, व्हाट हो गया प्री डिटर्मिनर। ओके, शी वॉज क्वाइट अ चार्मिंग पर्सन, शी वॉज क्वाइट अ चार्मिंग पर्सन, शी वॉज अ चार्मिंग पर्सन। अगर हम बोलते हैं, चार्मिंग का मतलब होता है सुंदर, चार्मिंग का मतलब भी होता है सुंदर। वह एक सुंदर महिला थी, मतलब सुंदरता सिर्फ उसका सुंदर चेहरे की सुंदरता से नहीं झलकता है। ये चार्मिंग मतलब बोलने में भी सुंदर थी, अपने कार्य में भी सुंदर थी, इसीलिए चार्मिंग वर्ड आया। तो चार्मिंग पर्सन ये जो हो गया, दिस इज नाउन फ्रेज, एंड ए इज अ डिटर्मिनर ओवर हियर, एंड क्वाइट इज प्री डिटर्मिनर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। He told us quite an interesting story. Okay, in an interesting story क्या हो गया, ये हो गया नाउन फ्रेज, या नाउन समझो, नाउन फ्रेज ही हुआ। एंड क्या हो गया, डिटर्मिनर। क्वाइट क्या हो गया, प्री डिटर्मिनर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, इट वॉज रादर अ चिली मॉर्निंग। चिली का मतलब होता है ठंड, हाँ। रादर का मतलब होता है फिर भी, या फिर भी, हाँ, ठंड था सुबह में। ओके, तो चिल्ली मॉर्निंग क्या हो गया, दिस इज अ नाउन फ्रेज, ए इज अ डिटर्मिनर, रादर इज अ प्री डिटर्मिनर। रादर का मतलब फिर भी, ठीक है, क्लियर। दे गेव अस रादर अ नाइस प्रेजेंट, वो लोग फिर भी हम लोगों को एक अच्छा तोहफा दिए, गिफ्ट दिए, ठीक है। फिर भी, चलो फिर भी लगे मतलब चलो काम चल जाएगा, अच्छा है, ठीक है ना। तो नाइस प्रेजेंट क्या हो गया, ये हो गया नाउन फ्रेज, ए हो गया डिटर्मिनर, रादर हो गया प्री डिटर्मिनर ऑफ इंटेंसिफायर्स कैटेगरी। अभी जो भी प्री डिटर्मिनर मैं बता रहा हूं इंटेंसिफायर कैटेगरी का है। नाउ नेक्स्ट वन, माई मदर इज सच अ ब्यूटिफुल वुमन। मेरी माँ, अगर मैं बोलता हूं माई मदर इज अ ब्यूटिफुल वुमन, मेरी माँ एक सुंदर महिला है, सुंदर औरत है, तुम्हारी माँ एक सुंदर महिला है, ठीक है, ऐसा बात होती है। तो सिर्फ सुंदर वाली बात होती है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं माई मदर इज सच ब्यूटिफुल, मेरी माँ एक इतना सुंदर महिला है, मतलब बहुत सुंदर है, इसीलिए सच लगा है। तो ये हो गया ब्यूटीफुल वुमन हो गया, ये हो गया डिटर्मिनर, ये हो गया प्री डिटर्मिनर। सॉरी 1 मिनट। ब्यूटीफुल वुमन हो गया, ब्यूटीफुल वुमन हो गया, ये नाउन फ्रेज, मेरे साथ रिपीट कर दोगे, ओके। ये हो गया नाउन फ्रेज, ये हो गया डिटर्मिनर, सच हो गया प्री डिटर्मिनर। क्लियर। इतनी सुंदर, इतनी वाला हो जो बात हो गया वो प्री डिटर्मिनर हो गया। तो हम लोग इंटेंसिफायर के बारे में पढ़ रहे थे, ओके। So we have finished this today's category of lesson, I mean today's topic we have finished. So I'll come on to the other topic in the next class, okay. So that's all for today, my dear students. Thank you.